Hello friends, this is Dr. Muzammil Rahman and you're watching my official YouTube channel. और इंशाल्लाह इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and it will be the second fragment or second part of our previous video that was trading account and financial statements. तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो do not forget to hit the bell icon, do subscribe and do not forget to leave your comment. क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है, सो दैट वी आर एबल टू मेक न्यू वीडियोस. ओके ग्रेट, नाउ लेट्स मूव टू आवर टॉपिक, दैट इज़ द पार्ट सेकंड ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस की. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. So in this video we'll be talking about this profit and loss account. Profit and loss is also known as, we call it performance statement or income statement. तो ये कुछ नाम है जो आपने याद रखने हैं, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस इज नोन बाय दीज थ्री नेम्स. समवेयर वी कॉल इट प्रॉफिट एंड लॉस, वी मे कॉल इट परफॉर्मेंस स्टेटमेंट, और वी आल्सो मे कॉल इट इनकम स्टेटमेंट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द डेफिनेशन कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है एक्चुअली. Profit and loss, in simple terms, it's an account which is used to prepare in the business for the purpose or with an objective of calculating net profit or net loss. Great. So एक ऐसा फाइनेंशियल टूल, एक ऐसा पैरामीटर, एक ऐसा वेपन हम इसे कहेंगे in the business in accounts, which tells us, which gives us the true picture of the business in terms of net profit और नेट लॉस. जब हमने प्रिपेयर किया था अपना ट्रेडिंग अकाउंट, एंड दैट डियर आई टोल्ड यू कि ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस की, दिस प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज बीन ascertained where? By the preparation of profit and loss account. Now let's move to some of its essential features. तो पहली बात, it's known as profit and loss, performance statement, or it's also known as income statement. Now let's move to the features of profit and loss. Its characteristics. So ऊपर हम लिखेंगे profit and loss. Number first, it is an account. So this is the first feature of the profit and loss. तो पहली चीज़ याद रखनी है हमने कि profit and loss एक account means it does have two sides, debit side and credit side. Number second, it is nominal in nature. इसकी फितरत, इसका जो नेचर रहता है ना प्रॉफिट एंड लॉस का, इट्स व्हाट? इट्स नॉमिनल. मींस जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, so this will be the profit and loss account. On this side, all expenses will be written, and on that side, all incomes will be written. So this will be the credit side, and this will be the debit side for expenses and losses, for incomes and gains. So it is nominal in nature. This is the second characteristic of profit and loss. तो याद रखना है कि ये nominal है इसका nature. Number third, it is used to estimate net profit or net loss.
सो एक ऐसा टूल, a weapon which is used to calculate your net profit, इसके बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह, once will be at the end of this talk, कि नेट प्रॉफिट हम किसे कहते हैं। अगर याद होगा आपको, जब मैंने ट्रेडिंग अकाउंट आपसे पढ़ाया था, वहां पर हमें क्या कैलकुलेट है, वी कैलकुलेट द ग्रॉस। सो द फिगर्स दैट वी गेट फ्रॉम ट्रेडिंग, दे आर ग्रॉस फिगर्स, मीन्स दे आर रॉ, नॉट प्योर, एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट। लेकिन जो रिजल्ट हमें एसेटेन होगा कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में, दैट विल बी द नेट रिजल्ट, मीन्स एग्जैक्ट फिगर्स, रियल फिगर्स, ट्रू फिगर्स ऑफ द बिजनेस। तो वो हमें कहाँ निकलेंगे, वो हमें निकलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। Number 4, it is also known as income or performance statement. So these are two new names, not new, these are old names, but these are some names which are tagged with profit and loss. So profit and loss, sometimes we call it income statement along with the trading account. We call it performance statement because it tells you, जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े थे तब मैंने कहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की दो ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वन, टू चेक दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यार अगर मैंने स्टार्ट किया है अपना बिजनेस, आई मस्ट नो कि मेरी परफॉर्मेंस क्या रही। परफॉर्मेंस मीन्स व्हाट? परफॉर्मेंस सिंपली मीन्स प्रॉफिट और लॉस। क्या मैंने नफ़ा कमाई या मेरा नुकसान हो चुका है इन द बिजनेस। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। अच्छा, नंबर 5, it is always prepared after trading account. Hey, we know that accounting, it's a systematic process. तो अगर आप चाहोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट से पहले बनाना, तो इट्स डेडली इम्पॉसिबल, बिकॉज कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, वी गेट आवर ग्रॉस पिक्चर्स, either we get gross profit or gross loss, and the same is to be shifted towards the profit and loss. So it is deadly impossible to prepare profit and loss account without the preparation of our trading account. तो याद रखना है कि it is always prepared after trading account, but before balance sheet. तो इसकी जो पोजीशन है ना, जब हम अकाउंटिंग साइकिल पढ़ते हैं, सो इट कम्स आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट बट बिफोर बैलेंस शीट। ग्रेट। तो दीज वर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप सबके लिए। नंबर फर्स्ट, इट्स एन अकाउंट, इट्स नॉट सिंपली एस ड्यूटोनिक फॉर्मेट। Number second, it is nominal in nature, means it will follow the rules of nominal on the debit side and on the credit side. Then it is used to estimate net profit or net loss. This is the basic objective of every profit and loss account. It is also known as income statement, or we call it performance statement. Then it will always be prepared after the preparation of trading account but before balance sheet. So these are some of the essential features of every profit and loss account. Now let me show you once again the accounting cycle where this account fits in. Great. Now number first, we have transactions. From transactions we have vouchers. From vouchers we prepare our journal, then we prepare our ledger accounts, then we prepare our trial balance, and जिसे हम कहते हैं mother of the financial statements, trial balance. From trial we prepare first trading, then profit and loss, and then balance sheet. And then this is the total work. So here is your profit and loss. ये मैं बात कर रहा था, it comes after your trading but before profit and loss. तो this is said to be the position of the profit and loss account. कि ये इसकी position कहाँ पर है? So the position is कि it comes after trading
and it comes before profit and loss, sorry, before balance sheet. Great. So ये था accounting cycle and where is the position of the profit and loss. Now we have two more things to learn here. Profit and loss always takes in indirect incomes and expenses. क्योंकि डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस हम कहाँ लेते हैं? वी टेक देम वेयर इन ट्रेडिंग अकाउंट. लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज डील्स विद व्हाट? इट डील्स विद इनडायरेक्ट इनकम्स and indirect expenses. Okay, now before the preparation of the profit and loss, let me throw a limelight on these two terms कि indirect expense और indirect income हम किसे कहते हैं. Great. पहले हम बात करते हैं indirect incomes की. What are indirect incomes? Great. Actually, these are those incomes which are generated by the business from its non-core operations. यानी वो पैसा जो आपके पास आ रहा है लेकिन आपके कोर ऑपरेशन से नहीं, द बेसिक बिजनेस से नहीं आ रहा है. इट्स कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स. फॉर एग्जांपल, जस्ट इलस्ट्रेट इट विद सर्टेन एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, आई एम अ फ्रूट सेलर. सो आई एम अ फ्रूट सेलर. तो मैं एक फ्रूट सेलर हूँ. जो रेवेन्यू मेरे पास आ रहा है आफ्टर सेलिंग द फ्रूट्स, दैट्स माई डायरेक्ट इनकम. इनकम दैट आई एम जनरेटिंग फ्रॉम द सेलिंग ऑफ फ्रूट्स. मैं दिन भर बहुत सारे फ्रूट्स बेच रहा हूँ. मैंगोज, एप्पल्स, बनानास, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. आई हैव सो मेनी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स. अब जो मैं इनकम यहाँ से जनरेट कर रहा हूँ फ्रॉम सेलिंग द फ्रूट्स, आई एम जस्ट डिपॉजिटिंग दैट इनकम इनटू अ बैंक. यहाँ से हमने डायरेक्ट इनकम कमा ली, इसको हमने कहाँ डिपॉजिट किया? बैंक में. एंड आई एम गेटिंग एन इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ से 10% पर एनम. एनुअली मुझे कितना? 10% का ब्याज मिल रहा है बैंक से. तो अब एक साल हो चुका है. आई हैव जस्ट डिपॉजिटेड रुपीज़ 1 लाख. ये जो 1 लाख था मेरे पास, इट वॉज माई डायरेक्ट इनकम. इसको मैंने डिपॉजिट कहाँ पर किया हुआ है? बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है. एंड आफ्टर 1 ईयर आई एम गेटिंग रुपीज़ 10,000 फ्रॉम द बैंक. अब 10,000 मैं कमा रहा हूँ बैंक से एज एन इंटरेस्ट. So this will be treated as my indirect income because this income I have not earned it, generated it from my core operation. My core operation is selling fruits. इसी तरह से मैंने कहीं से कमीशन कमा लिया, कहीं पर इंटरेस्ट कमा लिया, कहीं पर डिविडेंड कमा लिया, कहीं पर ग्रांट्स ले लिए, कहीं पर सब्सिडी, कहीं पर डिस्काउंट ले लिया. यानी याद रखना है कि एक ऐसी इनकम जो आपके कोर ऑपरेशन से नहीं आ रही, कोर ऑपरेशन से नहीं आ रही है, या फ्रॉम द सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट. We call that what? We call that indirect income. अच्छा, इसी तरह से आपके होते हैं indirect expenses. Direct expenses की बात मैंने की थी ट्रेडिंग अकाउंट में. If you're watching this video for the first time, please do go to my YouTube channel and watch that from the playlist Trading Account Tricks and Tips. You will learn that deeply because we have done the micro analysis of the trading account. तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि इनकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की. एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर incurred in a corporate or in the business but does not become the part and parcel of the product. यानी एक ऐसा एक्सपेंस जो बिजनेस में तो इनकर हो जाएगा, you are spending some money on those expenses, लेकिन वो डायरेक्टली एसोसिएट नहीं होते आपके प्रोडक्ट्स या सर्विस के साथ. ग्रेट. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं रिसेंट एग्जाम्पल जो मैंने सेट की थी, दैट वाज आई एम अ फ्रूट सेलर. अब मैंने क्या करना है? आई जस्ट हैव टू मेक एन एडवर्टीजमेंट अबाउट माई फ्रूट्स दैट आई एम सेलिंग द बेस्ट क्वालिटी फ्रूट्स इन माई एरिया, इन दिस सिटी. अब मैंने क्या किया? I've just made a YouTube ad or a social media advertisement I've done through Google Ads.
या मैंने YouTube पर एक एड बना लिया, या मैंने से फॉर एग्जांपल आई हैव हायर्ड एनी ब्रांड एम्बेसडर, या मैंने बिग 92.7 FM वालों को एक एड दे दिया यार ये, या मैंने ग्रेटर GK का इस्तेमाल करके अपने बिज़नेस को पब्लिटाइज एडवर्टीजमेंट करने की कोशिश की। चाहे मैं YouTube पे एडवर्टीजमेंट कर लूँ, बिग 92.7 FM पर कर लूँ, या GK पर, आई हैव टू पे देयर because they are not going to make it free, free of cost. I have to pay to the news agency, to the this radio networking. I have to pay to the YouTube as well as a corporate for making my advertisement. लेकिन ये जितने भी एक्सपेंस यहाँ से हो रहे हैं कि उनकी डायरेक्ट लिंक मेरे फ्रूट्स के साथ नहीं है. They are not becoming the part and parcel of my fruits. So this type of an expense is said to be what? We call it indirect expense. Yeah, there is one more definition that you can use. Those expenses which are incurred outside of the factory or after the preparation of goods and services. आपने products तो बना लिए. For example, this is my supplier. Here is me, I'm a manufacturer. And now these are my customers. यहाँ से यहाँ तक जितने भी expenses incur होंगे ना, we'll call them direct expenses till the product gets manufactured, which becomes the part and parcel. We have a detailed discussion on direct expenses. अब यहाँ पर मेरे products तो manufacture मैंने किए, but I have to sell them to the customers, to the ultimate customer. अब हुआ क्या? I have to just sell them to the ultimate customers. ये एक जगह पे, दूसरी जगह I have to make once again I have to make advertisement to make them aware about my products. या मैंने यहाँ से यहाँ तक transport का इस्तेमाल करना है, I have to pay carriage outwards. So that will be called as what? We call that indirect expenses. Yani simply, the simple funda is that those expenses which are not directly associated with the product, yeah, which have not become the part and parcel of the product. जैसे accountant है, मेरी I'm the fruit seller. मेरे company में accountant बाहर पड़ा है, is just maintaining the records. Accounting maintain कर रहा है वो. तो accountant की जब हम बात की, is getting the salary, लेकिन उसको fruit selling के साथ कुछ वास्ता ही नहीं है. So the salary which is given to accountant is what? Is an indirect expense. या हमने बैंक से लोन निकाला हुआ है. We have taken a loan from the bank and we now have paid interest to the bank. We'll call that indirect expense. Hope you got it. Now let's talk of the format. Profit and loss में हम results कैसे ascertain करेंगे और इसका हम format कैसे prepare करते हैं. Before making the format of your profit and loss, I'm just once again making the format of your trading account, because we start our profit and loss with the result of what? With the result of trading account. So ये है हमारा trading account. So this is particulars and this is the amount. Particulars and amount. तो सबसे पहले जो आइटम हम लिखते हैं that is opening stock to purchases to direct expenses. यहाँ से हम लिख रहे हैं by sales, by closing stock. तो अगर ये वाली साइड बड़ी होगी, because this is the debit side and this is the credit side. अगर ये वाली साइड बड़ी होंगी इस वाली साइड से, then we have gross profit carry down. और अगर एक्सपेंस वाली साइड बड़ी होंगी आपकी क्रेडिट साइड से, देन वी हैव बाय ग्रॉस लॉस. ग्रेट. तो यहाँ पर हम टोटल करते हैं इसका. Alhamdulillah. Great. So if credit side is greater than debit side, then we have gross profit. If this side is greater than that side, then we have gross loss. या नफ़ा या नुकसान. Great.
तो अब यहाँ से ही हम अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस हैं इसको हम प्रिपेयर कर लेंगे. एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर सी, मिस्टर मुज़म्मिल, एज ऑन डेट, जो भी डेट होगी. This is my particulars and rupee and amount, and I have this particulars and amount. Great. Now there are some technical points that you must learn. Now we know this, the nature of profit and loss is what? It's nominal. So this is the credit side and this is the debit side. So here all indirect expenses will be written, all indirect incomes will be written. So this is my debit side and this is my credit side. Great. लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस की जो शुरुआत, इट गेट्स स्टार्टेड विद आइदर ऑफ दीज टू टर्म्स. यू नो, या तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो इसी से स्टार्ट होगा, अगर ग्रॉस लॉस होगा तो उसी से स्टार्ट होगा. लेट्स एज्यूम कि वी हैव ग्रॉस प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बाय GROSS, ग्रॉस, PROFIT, BD, brought down. Hey, now we have gross profit. अगर कोई कहेगा आपसे कि आपने इसको क्रेडिट साइड में क्यों लिखा है? Because this is incomes and gains. So this is a gain to me. This is an income to me. So we have just certain gross profit. अगर gross loss होगा, दो में से एक ही चीज़ होगी. If we have gross loss, then we'll shift it here to gross loss. ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपने याद रखनी है. Profit and loss always gets started either with gross profit or with gross loss. Depends upon the situation of the trading account. Trading accounts के जो भी results आएंगे, नतीजे आएंगे, उन्हीं से आपका profit and loss जो है वो start होगा. अगर gross profit आ रहा है तो credit side में लिखेंगे. क्यों? Because credit all incomes and gains. अगर अगर gross loss आ रहा है तो इसको हम कहाँ से लिखेंगे? We'll write down that on the debit side. Because why? Because debit stands for all expenses and losses. So this is loss and this is gain. Great. This is the profit. This is the income that I have earned. This is the loss that I have incurred. तो अगर profit होगा तो credit side में, अगर loss होगा तो debit side में. उसके बाद हम लिखेंगे indirect expenses. For example, I'll write salaries. किसी ऑफिशियल को हमने सैलरी दे दी. CEO होगा, आपके अकाउंटेंट्स होंगे, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, आपके मैनेजर्स होंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. वी प्रोवाइड देम सैलरीज. देन टू ऑफिस एक्सपेंसेस. ऑफिस में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, चाहे वो ऑफिस लाइटिंग होंगी, ऑफिस डेप्रिसिएशन होंगी, आपकी ऑफिस हीटिंग होंगी, मीन्स एक्सपेंसेस विच आर जस्ट इनकर फॉर ऑफिशियल वर्क. ऑफिस में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाएंगे. बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू विथ द व्हाट, नथिंग टू डू विथ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो डायरेक्ट एक्सपेंस अगर होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे. लेकिन ऑफिस इट्स इनडायरेक्टली एसोसिएटेड बिकॉज ऑफिशियल वर्क जितनी भी होगी ना, दैट्स इनडायरेक्ट. उसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट विल राइट इज टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू डिस्काउंट अलाउड, टू depreciation, to dividend allowed, to selling and distribution expenses. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, चाहे आपके वो इसमें सभी एक्सपेंसेस आते हैं. आपके एडवर्टीजमेंट, आपके प्रमोशनल एक्सपेंसेस, सेल्समैन सैलरी,
your free gifts, samples, etc., etc. So these all will be taken here in selling and distribution expenses. And on this side we'll write the indirect incomes. तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? सपोज फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे बाय कमीशन रिसीव्ड, कहीं से हमने कमीशन कमा ली है. बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, कहीं से हमने इंटरेस्ट कमा ली. बाय डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड, कहीं से हमने डिविडेंड कमा ली. तो डिविडेंड इज एक्चुअली इट्स अ रिटर्न दैट वी गेट ऑन शेयर्स और समटाइम्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स दैट यू मेक. तो अगर आपने कहीं से डिविडेंड कमा ली, सो इट्स आवर इनडायरेक्ट इनकम. तो और बाय रेंट रिसीव्ड, कहीं से किसी से हमने रेंट ले ली, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड. Great. So then we can have discount received, by discount received. तो अगर आपने कहीं से discount कमा लिया तो we'll record that on the credit side. Great. Now these are our indirect incomes and these are our indirect expenses, and we'll start with either gross profit or gross loss. दो में से एक ही चीज़ होंगी, दोनों तो possible नहीं है, या तो gross profit होगा या तो gross loss होगा. Once again what we'll do, we'll make a rough total on both the sides. ये वाली side इसका भी हम rough total कर लेंगे, इसका भी हम total कर लेंगे. Suppose जब हमने यहाँ से total किया ना, we are getting now on the credit side we are getting say rupees 1 lakh. ग्रेट. इसका टोटल करके कितना आ रहा है? रफली 1 लाख. इसका जब हमने टोटल किया वी आर गेटिंग 80,000 रुपीज़, वी आर गेटिंग 80,000. ग्रेट. इसका जब डेबिट साइड का टोटल किया तो हमें कितना मिल रहा है? 80,000. क्रेडिट साइड का टोटल किया तो 1 लाख आ रहा है. सो नाउ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, दिस इज आवर इनकम साइड. तो हमने ज़्यादा कमा लिया और खर्च कम हुए हैं हमसे. तो अब टोटल में हमने रूल पहले ही पढ़ा है कि टोटल में हम ग्रेटर साइड हमेशा लिखते हैं. तो हम यहाँ से भी 1 लाख लिखेंगे और यहाँ से भी 1 लाख लिखेंगे, लेकिन यहाँ से तो 1 लाख है ही नहीं. सो हियर विल गेट द डिफरेंस. द डिफरेंस इज सेड टू बी द NET, नेट प्रॉफिट, सी रुपीज़ 20,000, 20 एंड दीज एक्सपेंसेस 80 मिला कर अब 1 लाख बन रहा है. सो दिस इज व्हाट वी गेट द रिजल्ट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस. यही तो रिजल्ट हमें निकल रहा है कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस से. हमारा जो क्रेडिट साइड है ना, ये ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू द डेबिट साइड, एंड द डिफरेंस इज सेड टू बी द नेट प्रॉफिट. अगर इसके बदले कुछ इसका अपोजिट होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस साइड इज कमिंग एज रुपीज़ 1 लाख, ये यहाँ से 1 लाख हमें आ रहा है, और एंड दिस द क्रेडिट साइड वी आर गेटिंग 80,000. अब क्रेडिट साइड हमें छोटा आ रहा है एज कम्पेयर टू व्हाट? As compared to the debit side, means expenses have incurred, these have incurred more as compared to our incomes. Expense बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो it's obvious यहाँ से income हमें कम generate हो रही है. So the difference will be called as by net loss. Net loss. So we are getting a net loss of rupees 20,000. ग्रेट. इस टाइम डेबिट साइड बड़ी होंगी. अगर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है तो देन द डिफरेंस विल बी रिटन एज हियर नेट प्रॉफिट. या तो यहाँ से बैलेंस आएगी, ये यहाँ से बैलेंस आएगी. अगर ये वाली साइड बड़ी है तो देन यू विल गेट द डिफरेंस ऑन दिस साइड. अगर ये वाली साइड बड़ी है तो देन यू विल गेट द डिफरेंस. यानी डिफरेंस हमेशा, इसके लिए फंडामेंटल रूल यही है कि इट इज़ रिटन ऑलवेज ऑन द साइड वेयर वी हैव डेफिसिट. अभी मैंने कहा 1 लाख यहाँ से आ रहा है, यहाँ से 80,000 आ रहा है, तो डेफिसिट कहाँ से? डेबिट साइड. तो डिफरेंस विल बी रिटन हियर टू नेट प्रॉफिट. अगर ये वाली साइड बड़ी है, ये छोटी आ रही है आपकी क्रेडिट साइड, मीन्स द डिफरेंस विल बी रिटन ऑन द डेफिसिट साइड बाय नेट लॉस. ये दो रिजल्ट्स हमें प्रॉफिट एंड लॉस में से एसरटेन हो रहे हैं. इसीलिए तो हम तड़प रहे थे एज एन ओनर, एज अ स्टेक होल्डर, एज अ गवर्नमेंट, as a tax authority, as a research scholar, as a management, as employees, everybody, we are waiting impatiently for now this is the net profit or net loss. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में जो एंड रिजल्ट्स हमें मिलेंगे ना, इट विल गेट आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है तो दैट विल बी शिफ्टेड ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज वी आर फॉलोइंग नॉमिनल रूल हियर, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. अगर आपका ग्रॉस लॉस आ रहा है विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड.
तो फिर जितने भी अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे विल राइट डाउन देम ऑन द डेबिट साइड, और जितने भी इनडायरेक्ट इनकम्स होंगे विल राइट डाउन देम ऑन द क्रेडिट साइड. देन विल डू अ रफ टोटल. इफ दिस साइड इज कमिंग ग्रेटर एज कंपेयर टू द डेबिट साइड, द डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज नेट प्रॉफिट. अगर एक्सपेंस वाली साइड बड़ी आ रही है और एज कंपेयर टू द इनकम साइड, देन द डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज नेट लॉस. Great. Now let's throw a limelight on these few more important terms that you must learn here in the profit and loss. Hope you got this. So there's nothing that tough. Now here is a $1 billion question, that is net profit or net loss. जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं द फिगर दैट यू गेट्स एट द एंड इज ग्रॉस, लेकिन यहां जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में फिगर आ रही है दैट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. व्हाट डज दिस मीन? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मीन्स इट इज अ प्रॉफिट विच इज ट्रू इन नेचर, मीन्स यू नाइदर कैन ऐड नॉर कैन डिडक्ट एनीथिंग आउट ऑफ इट. द ट्रू पिक्चर नाउ हैज कम आउट. जैसे मैंने आपको स्टूडेंट्स की एग्जांपल, जब भी हम अपने किड को कहीं पर किसी भी स्कूल में एडमिट कर दें, ड्यूरिंग द ईयर ही और शी डज हैव सेवरल टेस्ट्स. तो टेस्ट्स में उसे जिसे हम इंटरनल मार्क्स के T1 आ रहा है आपका, T2 आ रहा है आपका, T3 आ रहा है, सी इज गेटिंग 90 आउट ऑफ 100, 90 आउट ऑफ 100, 90 आउट ऑफ 100, सो आउट ऑफ 300 ही और शी इज गेटिंग से 270 मार्क्स. अभी एंट्रम बाकी, और ये इसने दूसरे स्कूल में देने या कहीं बोर्ड, जैसे हम यहाँ कश्मीर में वी हैव JK बोर्ड्स. सो नाउ दीज आर द मार्क्स दैट शी और शी हैज ascertained इन क्लास 8th. ये तो 8th के मार्क्स है. अभी 200 मार्क्स का एग्जाम, इसका एंट्रम फाइनल एग्जाम होगा, और वो भी दूसरे स्कूल में, और जिसकी मार्किंग आउटसाइड ऑफ द स्कूल होगी. सो दिस रिजल्ट आई विल कॉल इट द ग्रॉस मार्क्स. ग्रॉस मार्क्स, because I still have to wait for the net result. जब हमारे किड ने अब बोस का एग्ज़ाम दे दिया ना, फाइनली वी हैव गॉट दिस रिजल्ट. आउट ऑफ 200 ही और शी हैज़ गॉट 200, 200 में से 200 मार्क्स आ रहे हैं. सो टोटल अब कितने मार्क्स आ रहे हैं? नाउ द टोटल मार्क्स ही और शी इज़ गेटिंग is 470 out of 500. This is the net picture. This is the true picture. अभी ये ग्रास थी 270. अभी हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते इसे. Now our kid is getting what? 470 marks. Now this is the final picture. और इसमें न कोई चीज़ ऐड होगी न कोई चीज़ लेस होगी, with certain exceptions. Great. तो इसको हम क्या कहेंगे? This is the net result that we have got. So same is the here, you know, same is the case here. Net profit या net loss जो ascertain होगा, this will be the true end profit, the true profit, the exact profit, जिसमें न कोई चीज़ add up होगी न कोई चीज़ deduct होगी. ग्रेट. तो दो और चीज़ें आपने याद रखनी है प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड. दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज द 7th कैरेक्टर. प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज गेट्स started either with gross profit or gross loss. प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना, हमेशा ये स्टार्ट होगा या तो ग्रॉस प्रॉफिट से या तो ग्रॉस लॉस से. दैट वी हैव लर्नड इन द फॉर्मेट एज वेल. ग्रेट. एंड नंबर 8, इट is the second financial statement. It's the second financial statement. The first one is trading account. Then the second one is profit and loss, and the last one is the balance sheet, even though we have cash flow as well. Great. So these were some important points that you are supposed to keep in mind related to what? Profit and loss account. और जो यहाँ पर हमें एंड रिजल्ट्स मिले ना, चाहे वो नेट प्रॉफिट होगा और हमारा नेट लॉस होगा. सो दीज विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू द बैलेंस शीट.
तो उसके बारे में हम इंशाल्लाह उसी टाइम बात करेंगे कि नेट प्रॉफिट को हम आखिर में करते क्या है, हाउ इट्स बीन सेटल्ड, अगर या ग्रॉस नेट लॉस हमें निकल रहा है तो इसका हमने करना क्या है, व्हाट आर देयर इम्पैक्ट्स, हाउ दे इफेक्ट द बिजनेस and the performance of the business, that we'll learn in the next topic, that is balance sheet, जिसे हम कहते हैं position statement भी. Hope you got this, hope you got everything related to profit and loss, and if you do have any doubt, any question, please do ask me, leave a comment. And बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये दे आर रिक्वेस्टिंग कि डेवलपमेंट्स इन अकाउंट्स का सेकंड वीडियो बना लीजिए प्लीज़. एक्चुअली आई हैव मेड दैट वीडियो, देयर इज एन एडिटिंग गोइंग ऑन, एंड इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज इट इज़ कमिंग फॉर यू with great efforts. So please do share, please do support your brother as much as you could, and don't forget to hit the bell icon. Thanks a lot.